सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। Hello dear students, welcome to Bright Future School of Studies online classes. Today we will study about organs of government. Clear? Organs of government, and keep it in your mind that it is fourth part of the chapter functioning of Indian democracy. Clear? There are three organs of the government: legislature, executive and judicial. लेजिस्लेचर को व्यवस्थापिका बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका बोला जाता है, जुडिशरी को न्यायपालिका बोला जाता है। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ दीज थ्री ऑर्गन्स। क्लियर? दैट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट व्हिच फ्रेम्स लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है उसको लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका बोला जाता है। क्लियर? The organ of government which enforce the laws and ensures that the laws are followed is called executive. Clear? सरकार का वह अंग जो कानून लागू करता है और यह आश्वस्त करता है कि कानून का पालन किया जाएगा। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। क्लियर? एग्जीक्यूटिव। The organ of government which punishes those who do not follow the laws is called judicial. सरकार का वह अंग जो लोगों को दंडित करता है, जो कानून या नियमों का पालन नहीं करते हैं, सरकार के उस अंग को क्या बोला जाता है? न्यायपालिका बोला जाता है। So these are the three organs of government. The organ of government which frames the laws is called legislature. The organ of government which enforce the laws and ensures that the laws are followed is called executive, and the organ of government which punishes those who do not follow the laws is called judicial. Is that clear? Now let's talk about the legislature, the first organ of the government. Clear? As I told you, legislature is that organ of government which frames the laws for the proper governance of the country. Clear? There are many functions of the legislature, but here we will discuss some important functions of the legislature. Clear? The first function of legislature is framing laws. Our constitution empowered the legislature to frame the laws for the proper governance of the country, and it is an important function of legislature to frame the laws. Clear? Next is amendments in the constitution. Clear? As I told you, as per the needs, time to time the amendments are necessary in the constitution, because for different times the needs of the people and the country are different. That is why it is necessary to make suitable amendments in the constitution, and in our constitution it is mentioned that only it is the legislature which can make the amendments in the constitution by following a specific procedure. So making amendments in the constitution is also the duty and work of the legislature. Clear? संविधान में संशोधन करना लोगों की जरूरतों के अनुसार ये काम होता है, ये वर्क होता है किसका? लेजिस्लेचर। Is that clear? Okay. If we talk about the next function, administrative functions. As we discussed in the previous videos, I told you that there are two types of government: parliamentary form of government and presidential form of government. At that particular time I told you that in presidential government the executive and legislature are independent. Clear? Are separate. So there is separation of powers.
but in the parliamentary form of government. Clear? But in the parliamentary form of government, the executive is responsible to the legislature. It means executive is the part of legislature, or we can say that legislature is the part of executive. Clear? So there is not the separation of powers, but here the fusion of powers. There is fusion of powers. Clear? So all the executives are responsible to the legislature. Legislature can ask the executives about the policies and laws of the constitution. Clear? So in this manner the legislature exercises its control over the executive. Clear? एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उन डिसीजंस को क्लियरली लेजिस्लेचर में आकर डिस्कस करना होता है। जो भी अपोजिशन पार्टी होती है उनके क्वेश्चंस के आंसर देना होते हैं। क्लियर? या जो भी पब्लिक के क्वेश्चंस होते हैं जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में रेज करते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इस प्रकार लेजिस्लेचर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करती है किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। क्लियर? तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट होती है। क्लियर? और इस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही एक होते हैं। किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों ही क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति। सो कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। इज दैट क्लियर? टू डिसाइड द पॉलिसीज फॉर कंट्री एंड फॉर गवर्नमेंट। क्लियर? लेजिस्लेचर का ही वर्क होता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज बनाती है कंट्री के लिए या उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए, उन पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन करना, डेलिब्रेट करना, मिनट एग्जामिनेशन करना। तो फिर एग्जीक्यूटिव ने जो पॉलिसीज बनाई है कंट्री के लिए, उन पॉलिसीज को सैंक्शन करना, यानी कि उनके लिए उन पॉलिसीज को लागू करने के लिए अपनी रजामंदी देना। क्लियर? तो ये वर्क होता है किसका? ये वर्क होता है लेजिस्लेचर का, कि जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने कंट्री के लिए फॉर्म की है, उन पॉलिसीज पर मिनट स्टडी करना, यानी कि बारीकी से उनका अध्ययन करना, उनके सभी फैक्टर्स को स्टडी करना, और उसके बाद में उन पॉलिसीज को सैंक्शन करना। और जब लेजिस्लेचर उन पॉलिसीज को सैंक्शन करती है तभी वो पॉलिसीज इन्फोर्स की जाती है। इट मींस एग्जीक्यूटिव कांट इन्फोर्स एनी पॉलिसी विदाउट सैंक्शन made by the legislature. Is that clear? So it is also one of the important functions of the legislature. Now next is discussions on subjects presented in the house. Clear? Whenever any issue or any subject presented in the house, in the legislature, then all the members of legislature डेलिब्रेट प्रॉपरली, यानी कि मंथन करते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर, उसकी मिनट स्टडी करते हैं, उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर वाद विवाद होते हैं, क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। क्लियर? और ये सारी चीजें इसलिए की जाती है ताकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट जो डिसीजन ले, उस डिसीजन में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का क्या हो? वेलफेयर, यानी कि वो सब्जेक्ट या उससे रिलेटेड डिसीजंस गवर्नमेंट के लिए और जनता के लिए, दोनों के ही लिए फायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो। इसलिए ये सारे सब्जेक्ट्स या इश्यूज लेजिस्लेचर में डिस्कस किए जाते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, वो इसको प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज जुडिशियल फंक्शंस। इन मेनी कंट्रीज लेजिस्लेचर आल्सो डज द वर्क ऑफ जुडिशियल। कई सारे देश हैं जहां पर लेजिस्लेचर जुडिशरी का भी काम करती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट,
या गवर्नमेंट इन किसी को भी अगर बर्खास्त करना हो, क्लियर, अपने पद से हटाना हो, तो उस स्टडी में, उस केस में एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से रिमूव करने के लिए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होती है, जिसको महाभियोग बोला जाता है। और प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट करना, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कंप्लीट करना, ये वर्क होता है किसका? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में अगर प्रेसिडेंट कोई भी गलत कामों में, करप्शन में या ब्राइब के केस में या किसी भी केस में गलत पाए जाते हैं, तो उसके बाद में लेजिस्लेचर में डेलिब्रेशन होता है इस टॉपिक के ऊपर। और फिर अगर लेजिस्लेचर के ज्यादातर मेंबर्स इस बात से एग्री करते हैं कि यस द प्रेसिडेंट इज गिल्टी, देन वोटिंग होती है। और वोटिंग अगर मोर देन 2/3 मेंबर्स ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को क्या किया जाए? अपनी पोस्ट से हटाया जाए। और वोटिंग अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट होती है तो प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना होता है, हटना होता है। क्लियर? यही प्रोसीजर यूएसए में भी फॉलो किया जाता है और सेम प्रोसीजर इंडिया में भी फॉलो किया जाता है, जिसको प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बोला जाता है, यानी कि महाभियोग। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज जुडिशियल फंक्शंस। Yes, it is completed judicial functions. Now we will talk about constitution of committees and commissions. Clear? लेजिस्लेचर में जब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक या सेंसिटिव सब्जेक्ट या सेंसिटिव डिस्कशन होता है, क्लियर, ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको मिनट स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनट एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उनका बारीकी से अध्ययन किया जाना होता है, या बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन, विचार मंथन किया जाना होता है, या जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनका सीधे तौर पर इफेक्ट देश की जनता और देश की पॉलिसीज पर पड़ता है, ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे लॉज को फ्रेम करने के लिए या ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर गहन विचार करने के लिए, डेलिब्रेशन करने के लिए, उनकी मिनट स्टडी करने के लिए जो लेजिस्लेचर है वो कुछ कमिटीज या कमीशंस फॉर्म करते हैं। ये कमिटीज और कमीशंस पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर लॉ को स्टडी करते हैं, क्लियर। उसके बाद में वो सब्जेक्ट किसके सामने रखा जाता है? लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है, और वो कमीशंस या कमिटीज ये इंश्योर करते हैं कि ऑल द फैक्ट्स मेंशन्ड इन द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आर स्टडीड मिनटली एंड complete deliberation is already made by the committees constituted by the legislature। तो इसलिए लेजिस्लेचर कुछ कमिटीज और कुछ कमीशंस को अपॉइंट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, और ये कमिटीज और कमीशंस उस सेंसिटिव या वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली स्टडी करती है, क्लियर। और उसके बाद में उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाता है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस या हेड ऑफ द हाउस, क्लियर, चेयरपर्सन ऑफ द हाउस, क्लियर, उनको सबमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसीज। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसीज। इन मेनी कंट्रीज द ट्रीटीज with foreign countries cannot be signed without the permission of the legislature। कई सारे देश ऐसे हैं जहां लेजिस्लेचर के पास ये पावर्स होती है कि बिना उनकी रजामंदी के, बिना उनसे पूछे या लेजिस्लेचर में डिस्कशन या लेजिस्लेचर के विदाउट अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर, क्लियर, कोई भी ट्रीटीज फॉरेन कंट्रीज के साथ साइन नहीं की जा सकती, क्लियर। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में लेजिस्लेचर के पास ये पावर्स भी होती है कि whenever they are declaring war against a particular country, then they need the approval of the legislature। यानी कि कुछ कंट्रीज में ये प्रोविजन भी है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने से पहले, किसी भी कंट्री के साथ युद्ध की तैयारी या युद्ध छेड़ने से पहले वहां की लेजिस्लेचर में
डिस्कस किया जाता है और लेजिस्लेचर का अप्रूवल लिया जाता है, उसके बाद ही वॉर या ट्रीटी किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ की जा सकती है। द लास्ट वन इज वर्क रिलेटिंग टू इलेक्शन। क्लियर? इन मेनी कंट्रीज लेजिस्लेचर आल्सो डज द वर्क ऑफ इलेक्शंस। इन इंडिया आल्सो द अपर हाउस इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस आर held in the legislative assemblies of the states. Clear? इंडिया में भी इलेक्शन का वर्क लेजिस्लेचर करते हैं। यू नो वेरी वेल द इलेक्शन ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं या हिंदी में राज्यसभा भी बोलते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन का प्रोसीजर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कंडक्ट किया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स को इलेक्ट करते हैं। क्लियर? और इसीलिए जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर का इलेक्शन होता है उसको डायरेक्ट इलेक्शन ना बोलते हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। क्लियर? इसके अलावा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इंडिया में वो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में कंडक्ट किया जाता है, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्लियर? उसमें भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और पार्लियामेंट के, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, क्लियर, जिनको हम हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं या हिंदी में राज्यसभा और लोकसभा बोलते हैं। क्लियर? तो इन सभी हाउसेस में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाते हैं। एंड यू नो वेरी वेल इन इंडिया द election of president is also indirect election. It means the people of India do not participate in the election of the president, while the representatives elected by the people of India elect the president of India. So these are the some important functions of the legislature. Study about it carefully, and if you found any doubt, then you can contact me anytime. Dear students, that's it for today. For more videos, keep watching our YouTube channel. Thank you very much for listening to me.